Good afternoon, and apologies that I can only speak in English at the moment. We have a mediator here. Everybody will understand better, no problem. Good, good. And let me start by saying a big thank you. Dhanyavad. Thank you to all of you for being here at the end of a long day, but especially a thank you to Sri Shantilal Mutta for his very warm invitation. Not only him, of course, because I'm aware that there's a whole team of people helping support him. Indrajit Jaswal, I've just met, and many others. So many, many thanks and many congratulations to you all for a very impressive day. After your one sentence, he will explain. Otherwise, there will be no problem. No, ये तो formalities है. Please go ahead. Thank you. And I wanted to say that I have been very impressed with everything that I've heard today. शांति राजी से हमारे ये मेहमान बहुत प्रभावित हुए हैं. And just to follow on a little bit with some of the ideas that we've been hearing about, perhaps I can add a few more thoughts of my own. कुछ और वो ऐड करना चाहते हैं. अब तक हमने जो समझा है उसमें कुछ और एडिशन करना चाहते हैं. And it was very interesting to see all the statistics on media and how technology should be something positive and helpful for us, but seems to be the cause of so many problems. टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें सही ढंग से करना चाहिए. And I think it was one of the very first Director General of the BBC, Lord Reith, and he said television is a potential menace. That was 50, 60 years ago. टेलीविजन हमारे लिए एक खतरे की घंटी बज सकता है, वो 1950 में कहा गया है. बीबीसी के डायरेक्टर ने. And perhaps one of the problems with technology is that we tend to forget what it was all about. टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम काफी टेक्नोलॉजी को कभी-कभी समझ नहीं पाते हैं. इसके लिए भी हम उनका कभी दुरुपयोग भी कर सकते हैं. If technology is the answer, then what was the question? टेक्नोलॉजी का अगर उत्तर हो तो फिर प्रश्न ही नहीं होता है. What were we trying to achieve with it? I think we need to remember that. हमें वो याद रखना है. And perhaps that tells us that there are some deeper issues which we need to look at in society today. हमारे समाज में और अधिक समस्या इस विषय पे गहरी होती जा रही है. It seems. one second. मैं पीछे कार्यकर्ताओं को रिक्वेस्ट करता हूं कि ऊपर बच्चे काफी शोर मचा रहे हैं, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है. जरा बच्चों को चुप बिठाने की कोशिश करेंगे. ऊपर प्लीज प्लीज. There seem to be some fundamental issues, forces which are at work in our world, and in many ways they relate, not to be too simplistic perhaps, to an over-materialistic and consumerist view of life. ये सब जो समस्या है वो भौतिकवाद के कारण भी ज्यादा उपस्थित हो रही है. People seem to talk a lot about GDP all the time. जीडीपी के लिए हम बार-बार बात करते रहते हैं. A few decades ago, one of the members of the Kennedy family in America, he said GDP measures neither the health of our children, the quality of their education, nor the joy of their play. कैनेडी के समय की बात कर रहे हैं कि जीडीपी का मतलब वो एजुकेशन नहीं है और ये जॉय ऑफ लाइफ नहीं है. जीडीपी से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती. It measures neither our wisdom nor our learning. वो हमें कोई विजडम ही नहीं देता है, उसका कोई ज्ञान भी नहीं मिल सकता है. Neither our wit nor our courage. हमें कोई हिम्मत भी नहीं देता है. Neither our compassion nor our devotion to our country. हमारे देश के लिए भी कोई ये उपयोगी नहीं रहता है. It measures everything
in short, except that which makes life worth living. I'm sorry, can you repeat? GDP measures everything except that which makes life worth living. जीडीसी सब चीज का मूल्यांकन करता है एक्सेप्ट हमारे जीवन कैसे जीना है, जीवन की जीने की कला जीडीपी कभी नहीं सिखा सकता. And as UNICEF put it a couple of years ago, a day will come when nations will be judged not by their military or economic strength, nor by the splendor of their capital cities and public buildings. यूनेस्को ने भी कहा है कि आने वाले समय में ये मिलिट्री की स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी कंट्री में वेल्थ कितने हैं, इससे कभी उसका जजमेंट नहीं किया जा सकता है. But by the well-being of their peoples. हम कितने अच्छे इंसान बन सकते हैं, उनसे ही उनका जायजा किया जा सकता है. By the levels of health, nutrition, education, opportunities, the respect, their political liberties, and so on. I think ये बहुत आसान शब्द है, आप समझ पाए होंगे. You've got the picture. Yeah. So in short, I think that if we stand back a little bit, we heard all the problems that are attributable to media, but perhaps underneath all this, there's a deeper unease that's affecting the human soul. ये जो मीडिया की असर हमारे अंतर के आत्मा को भी काफी नुकसान पहुंचाती है. The world is increasingly interdependent and fragile. The future has a tremendous potential, but also a tremendous risk. Please teach us. The world is increasingly interdependent and fragile. दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा, I'm sorry, I'm not able to. We're all dependent on each other. We're all connected to each other. एक दूसरे से connect. Chandra ji, can you help? Chandra ji, please. There was some pronunciation I'm not able to catch. Yeah, the world is very interdependent. We're all connected to each other, and everything we do affects each other. सारी दुनिया में हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और उनसे दोनों से सीख के हमको आगे बढ़ना है, इनका यह कहना है. And there's a tremendous potential for good if we use what we have in the right अच्छाइयों के way. लिए बहुत ही ज्यादा स्कोप है. जो बुद्धा जी ने कह रहे थे, इनका भी यही विवचन है. But if we use what we have in the wrong way, there's also a tremendous potential for catastrophe, for disaster. अगर ये मीडिया के इम्पैक्ट अगर गलत तरीके से जाए तो इसका सुनामी से भी ज्यादा बेहतर बहुत इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है. And so, what is the solution to that? Well, I think part of the solution lies with education. अच्छा, इसका सॉल्यूशन है मॉरल वैल्यूज एंड पीस एजुकेशन, मूल्यवर्धन. It lies in all of us transcending ourselves in some way, thinking not just of ourselves, but seeing more than ourselves. हम अपने लिए ही नहीं सोचना है, अपने से ऊपर से उभर के दीन दुखियों के लिए आजू बाजू एनवायरनमेंट को इतना वातावरण स्वच्छ करना है, तो वो हमारे हाथ में है. It requires that we think a little bit more about the meaning and purpose that we attach to our lives. हम अपने लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए भी जीना है. तो अपने खुद के अगर अंदर से एवोल्यूशन हो तो दूसरों का भी भला होता है. It requires that we learn to live with each other. हम एक दूसरों के साथ जियो और जीने दो. अपने जैन धर्म का मूल्य आखिर में वहीं से घूम फिर के आता है. भगवान महावीर ने 2500 साल पहले भी बता दिया, ऋषभ देव ने भी बताया इस बात को. आखिर में घूम फिर के सारी सोसाइटी यही आना है कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव. दैट हैज ही हैज डन इट. And it requires that we learn more about what it means to be a human being. अच्छा इंसान कैसे रहना, इसका मतलब यह है कि हम अच्छे कैसे बन सकते हैं, वो हमारे हाथ में है. One of the things that communication technologies have taught us
is that the world is very diverse. कम्युनिकेशन एक सिखा कि वर्ल्ड में डाइवर्सिटी है और कम्युनिकेशन से हम हर डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं. हर अच्छी चीजों को इस कम्युनिकेशन से सीख मिलती है हमको. We can learn from that diversity, not feel threatened by it. हर डाइवर्सिटी, हर विश्व में कल्चर होता है, अच्छा ही और बुराई का. अच्छा ही हर कल्चर में से हम सीख सकते हैं. And perhaps we need to remember that the ways in which we are the same are more important than the ways in which we're different. हम सब एकजुट करके सोचे तो वो अच्छी बात होती है. भले कोई कास्ट, क्रीड और रिलीजन हो, भाषा नहीं है, अपनी दिमाग की सोच की बात है. We have a common ancestry as human beings. अच्छे इंसान बनने के लिए सादे, सरल और सीधे आंसर्स है हमारे पास में और हमको उसको सदुपयोग करना है. And we share one planet Earth. पूरा विश्व एक परिवार है, एक प्लैनेट है. भले 800 करोड़ की आबादी होगी, बट पूरे विश्व में इंसान हंसता है तो हंसेगा, आप हंसेंगे तो हम हंसेंगे, आप गुस्सा करेंगे तो हम गुस्सा करेंगे. तो हम सब एक है. मानव धर्म, इनका कहने का मतलब तात्पर्य है. Yes, there are differences. Yes, there are differences. छोटे छोटे विवाद होंगे, छोटे छोटे डिफरेंसेस है, उसको हम सब लोगों को बैठ के इसको हल करना है. और ये ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है अगर हम आगे बढ़ाए तो. इनका तात्पर्य ये था. But if our skin is a different color, our blood is the same color, our tears are the same color. वो तो आप सबको समझ में आ गया. भले ही वो काला हो या गोरा हो, बट खून तो लाल होता है. जैन का भी खून लाल होता है, मुसलमान का भी लाल होता है, सिख का भी लाल होता है. तो खून लाल ही होता है. भले हम अलग अलग देश से हैं और अलग अलग जगह पे दूर रहते होंगे. And I think somehow we've forgotten that in today's world. Somehow we have forgotten that. इनका कहना है कि भी हमने अपनी वैल्यूज को भूल गए, मतलब दूर छोड़ दिए, पीछे छोड़ दिए. आगे हम मेटेरियलिस्टिक पतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं. And so we need to rethink what education is all about. अभी हमको सोचना है कि अगेन यही बात आती है, मॉरल और पीस वैल्यूज को, अंदर की शांति को लाने के लिए प्रलय जो सुनामी जो माइंड में आया उसको कैसे शांत करना है. उसको एजुकेशन के माध्यम से ही ऐसे करिकुलम बनाया जाए कि इसको वैल्यूज की एजुकेशन आगे बढ़े. तो ये सारा विश्व एक ही गूंज और एक ही आवाज से ये बात कह रहा है. इनका कहना है कि इनके जितने भी कॉन्फ्रेंसेस ये घूम के आए होंगे तो इनका यही कहना है कि सारे लोगों का विचार विमर्श यही आ रहा है कि हम सब लोगों को अंदर की ओर से जागरूक. जैन धर्म ये बता चुका है. As the UNESCO Charter put it, peace begins in the minds of men. पूरे अच्छे विचार और सरल अपने मन से, स्वच्छ भावना से होता है. तो यूनेस्को भी ये बात कहती है. यूनेस्को जो वर्ल्ड के हाईएस्ट थिंकर्स बॉडी होती है, वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े विद्वान और स्कॉलर्स होते हैं, ये भी उनका भी यही कहना, इनका ये कहना है. I'm not sure if it was deliberate, but they said peace begins in the minds of men, not of women. उनका कहना है कि पीस बिगिंस विथ एवरीबॉडी. आदमी में होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि भी लेडीज में नहीं आता, कि दोनों में पीस बिगिंस विथ द माइंड. So the implication maybe is we need to teach the men more about peace. तो इंसान को, आदमी को ज्यादा पीस सिखाना चाहिए. लेडी तो ऑलरेडी समझ चुकी है इसको, मतलब दुर्गा है लेडी तो, मतलब हमारी दुर्गा माँ वो तो माफ करती है, माँ होती है हमारे लिए. तो आदमी को ये सीखना चाहिए कि पेशेंस और अपनी वैल्यूज. And of course, talking about these things, education, values, morality, it's not new. इनका कहने के भी एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज ये कोई नई बात नहीं है, बट इसको हम भूल चुके हैं 100 सालों से. इसलिए आगे पहले भी उस आदिकाल से ये वैल्यूज थी, इसको अभी वापस इसको लाना है. जो वातावरण बिगड़ चुका है, दूषित हो चुका है. In the West, you can think of Socrates, Plato, Aristotle. Over here, Buddha, Confucius, Taoism. इनका कहना है कि विश्व में जितने भी सदियों से ये विश्व कितनी सिविलाइजेशन हुए, सोक्रेटिस इजिप्ट में थे, प्लूटोस थे, कॉन्फ्यूशियस थे, ताओ थे, हमारे यहाँ बुद्धा थे, भगवान महावीर थे. तो सबकी एक ही सोच थी, उस आदिकाल में भी यही सोच थी. I'm not so familiar with Mahavir, but I'm sure there are many moral teachings within the Jain scriptures and what Mahavir said too. Jain is the oldest religion in the history of the world, one of the oldest religions. Billions of years before it has been established. So I'm confessing my ignorance. वो बोलता है कि मेरे को जैनिज्म के बारे में इतना मालूम नहीं था, बट मैं इग्नोरेंट हूँ. मैं इसको मानता हूँ इस बात को, बट मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपने जो बताया है.
ये बहुत बड़ी मानता है और इनकी सिंप्लिसिटी इस बात को मान्यता है. And so it's not a new question. तो ये नया प्रश्न नहीं है, ये आदिकाल से है, तो इसको हमको आगे बढ़ाना है. But perhaps the world today is different from how it was before. आज की दुनिया 20 सालों में जो चेंजेस है, जो 5000 साल में नहीं, वो मुथा साहब ने भी बता दिया है. तो इनका कहना है कि अभी ये डिफरेंट हो गया, मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स और अपने स्वार्थ की तरह आगे बढ़ रही है दुनिया, सारी दुनिया. इसको अभी हम उसको डिफरेंट है, तो यही प्लेटफॉर्म है इस बात के लिए. And what we've seen from Shantilal's excellent presentation is that media are teaching values, but unfortunately in the wrong way. जो स्लाइड्स शांतिलाल जी मुत्ता साहब ने जो रिसर्च करके बताया एकदम परफेक्ट है, बट ये मीडिया जो वैल्यू सिखाना चाहती है वो रॉन्ग वे से सिखा रही है, इनका ये कहना है. उसका इम्पैक्ट, गलत प्रभाव पड़ रहा है अपने ऊपर. Advertising, media and so on, it's values education of the wrong form. वैल्यू एजुकेशन नहीं आ रहा है और रॉन्ग तरफ से आगे हम बढ़ रहे हैं. Of course it can be used positively, but at the moment there seem to be many problems. मीडिया एक ऐसी ताकतवर चीज है, इसको पॉजिटिव वे में भी किया जा सकता है, इनका कहना है. And so it's not enough for values education to be left to the family or religious institutions. It needs to have a proper place in school. इनका कहना है कि भी वैल्यूज और रिलीजन सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, स्कूल और एजुकेशन में इसको ये बढ़ावा देके हाईएस्ट लेवल पे ये मॉरल वैल्यूज सारे इंसानियत धर्म बचाने के लिए एक जरूरी है कि परिवार से और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से आगे बढ़ के मानव धर्म की तरफ से आगे हम बढ़े, मानवता की ओर. And so a couple of points about how we might look at that. अब कुछ ऐसे विषय हम डिस्कस कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं इसके बारे में, और इसका सुधार है और अपने हाथ में है ये. One is that moral education, values education, it's a work in progress, if you like. It's been going on for hundreds of years and it will carry on. We need to keep changing it, improving it. हजारों साल से ये प्रथा चलती आ रही मॉरल वैल्यूज की, इसको अलग ढंग से इसको पैकेज करके कॉन्सेप्ट ऐसे लाए कि ताकि इसको प्रभावित हो सके. मतलब We need to keep adapting it as the world changes. न्यू अडेप्ट, जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम अडेप्ट करके उस मॉडर्न वे से हम मॉडर्निटी विथ वैल्यूज, मॉडर्न वे से भी इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको पैकेजिंग करना है. But education is by its nature values laden. It's full of values. एजुकेशन का मीनिंग ही है वैल्यूज के साथ में जुड़ा है. एजुकेशन और वैल्यूज अलग नहीं है, एजुकेशन के साथ वैल्यूज जुड़ा हुआ रहता है, बट इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं वो अपने ऊपर है और समाज के ऊपर है. And education by its nature is transformative. It changes us. एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो माइंड को एम्पावर करके राइट वे भी लेके जा सकता है और रॉन्ग तरफ भी लेके जा सकता है. So the question is, what change does it bring about, and what values do we find and seek within it? हम लोगों को सोचना है, प्रश्न एक भी हम लोगों को सोचना है भी किस तरफ मुड़ान लेना है और किस तरफ से आगे की प्रगति की ओर बढ़ना है, डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव. What neuroscience tells us is that education even changes the physical structure of our brains. एजुकेशन में अगर ढंग से अगर पढ़ाई हो तो उसको मतलब माइंड को भी एकदम स्वच्छ बनाता है. As we learn things, we repeat patterns, we store memories, physically our brain changes. अपने दिमाग में एक इतनी ताकत है कि अच्छा और गलत हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग. And of course values, morality, they are a fundamental part of what it means to be a human being. ये तो हमारी धरोहर और हमारी संस्कृति है, फंडामेंटल वैल्यूज है जो घर से अपनी ये शिक्षा माँ बाप से प्रारंभ होती है वैल्यूज के. So education is not complete if it does not talk about love, respect, responsibility, honesty, tolerance. एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं होता है, एजुकेशन टीचर्स वैल्यू, लव, रेस्पेक्ट और परिवारजनों को साथ में लेके चलना और समाज को साथ में लेके चलना. तो एजुकेशन सिर्फ डिग्री पास होने से ही कोई एजुकेटेड नहीं होता है. एजुकेटेड वो होता है जो दीन दुखी और इंसानों को समझ सकता है और अपने समाज को समझ कर फैमिली को रेस्पेक्ट देता है. तो इसका मतलब है कि कंपैशन, लव, हार्मनी एंड पीस. And values, but education is about preparing us for life as a whole. एजुकेशन का मतलब है कि हमको जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग. But it's more than just preparation for life. Education is life. इट इज नॉट ओनली प्रिपरेशन, ये तो अपने जीवन ही इसके ऊपर
ढांचा खड़ा हुआ है एजुकेशन की वैल्यूज के प्रति. And if the outcome of education is that a certain set of values are worked with, are thought about, the way to those values is through those values. अगर एजुकेशन के साथ अपनी अच्छी सीख और वैल्यूज के साथ में हम बढ़े तो वो स्ट्रक्चर अच्छा होता है और इंसान खड़ता है उसके प्रिंसिपल्स के माध्यम से अपना स्ट्रक्चर बना के उसको स्ट्रांग रखता है. And so we need to think of values education not just as part of the curriculum, but as a whole philosophy of education. इसको अपना धर्म बनाना है. वैल्यूज एक अपना धर्म है. जैसे घर में हम सामायिक करते हैं तो अपनी एक धर्म है. हर चीज का मतलब सिस्टम से जितनी चाहिए उतना ही. तो ये सारी फिलॉसफी मतलब जीने की कला की बातें हैं. And perhaps instead of trying to put values in, we need to draw values out. वैल्यूज को दबा नहीं सकते. वैल्यूज को प्रोपोगेट करना है. आप अगर अच्छे हैं तो हम अच्छे रहेंगे उनके साथ, तो वो भी अच्छा होते हैं. तो उनका कहना है कि मतलब वैल्यूज को प्रोपोगेट करना है. यही मूल्यवर्धन का विजन है. So part of this philosophy of education is to see that within every individual there is the inherent potential to work out, to think for himself or herself and decide upon particular values. हर इंसान में क्षमता है अच्छा और बुरा सोचने की, और अपने प्रिंसिपल्स और अपने वैल्यूज को अगर वो आगे बढ़ाते जाएंगे तो वातावरण बहुत ही अच्छा होएगा, इनका कहना है. Education as igniting a flame. एजुकेशन एक अपने स्पार्क को तैयार करता है और सोच शक्ति बढ़ाती है जो उसको राइट और रॉन्ग को समझने के लिए. Enabling a seed to grow and blossom. ये पॉजिटिव सीड जो बैनियन ट्री बढ़ता है तो अच्छे फ्रूट्स देते हैं. जो आम हम खाते हैं पेड़ से, बैनियन ट्री से, तो वो अच्छी नर्चरिंग और अच्छे खाद और अच्छा क्वालिटी ऑफ केमिकल्स यूज करने से ये क्वालिटी सोच से क्वालिटी फ्रूट आता है. And that tells us about the way in which we need to look at students, not to look at them as bad students. हाँ, इनका कहना है कि बच्चों को हम जो भी कितना भी इम्पैक्ट उनको हम गलत तरीके से नहीं देखें, अपने उस सोच से देखें भी उसमें एक कैपेसिटी है, उनको हम अच्छा इंसान बनाने की क्षमता वातावरण रखता है. और हम एजुकेशन के माध्यम से और परिवार के माध्यम से और समाज के माध्यम से इस बच्चों को और भी इससे अच्छा बना सकते हैं हम. तो उनको हम वो लेबल नहीं लगाएं कि भाई वो गलत है. बच्चे के मीडिया इम्पैक्ट से या वेस्टर्न कल्चर से इनका बिगड़ना होता है तो वो तो एक स्वाभाविक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. बट इंटरनल एनवायरनमेंट हमको ये व्यवस्था बनानी है. But to help provide an enabling environment. हमको एक ऐसा वातावरण स्वच्छ करना है. It will help the children to grow. To realize that एक 10 मिनट अपने बाकी बचे सिर्फ एज पर प्रोग्राम 6:15 बजे हमें प्रोग्राम बंद करना है जो सवेरे 10 बजे शुरू हुआ था. सिर्फ 10 मिनट का टाइम बाकी है. ओनली 10 मिनट्स. मुझे विश्वास है कि हम राइट टाइम शुरू किए और राइट टाइम खत्म करेंगे. आपको ज्यादा नहीं खींचेंगे. सिर्फ 10 मिनट बाकी अभी. इनको आप सुनिए. पूरे विश्व जाके आते हैं तो इन्होंने एक अच्छी सोच से ये भारतीय जैन संगठन को इतना प्रभावित हुए. जो एशिया में अगर लोग, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड और यूनेस्को के लोग अगर एशियन रीजन के प्रभावित हुए तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है. 5 मिनट आप इनकी बात सुनिए. हर एक बात इनकी अगर इंग्लिश स्पीच की अगर आप इनका टेक होम अगर ये पॉइंट्स बनाएंगे तो ये सारी बाइबल ही इन्होंने एक 15-20 मिनट में बता दिए. तो ये पूरे 25 साल की पढ़ाई में भी आप इतना नहीं समझ सकते हो. तो ये इनका अनुभव, इनका अंतर्ज्ञान और अपने दिल से और भावना से वो बता रहे हैं आपको. तो ये मौका आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा. तो आप मेहरबानी करके 10 मिनट के लिए रुक जाइए आप. So values education, then we need to look at how we go about things. एजुकेशन को आगे कैसे बढ़ाना अच्छे ढंग से. Not just the what of what we do, but how we do things. मैकेनिकल वे से कैसे करना है इसका मंथन करना है. If the method isn't right, then no matter how good the content is, it won't work. मैसेज अगर सही ढंग से अगर दिए जाए तो ऑटोमेटिकली समझ बढ़ेगी. Actions speak louder than words. Action speaks louder than words. That's understandable. If I'm the teacher, अपने कार्यशीलता कर्म, अपने कर्म से कर्म योगी बनना है. I'm busy telling my students, don't smoke. Don't smoke. Smoking is bad for your health. मैं बच्चों को बोलते रहता हूँ डोंट स्मोक इट इज इंजूरियस टू हेल्थ. बट वो नहीं सुनते. जिसको वातावरण करना है उनको. What do they remember? Do they remember the words or the action? तो कहने से नहीं, अपने को करके रोल मॉडल बनना है.
And so if teachers want to really bring values education into a school, the first step is for teachers to look at themselves. टीचर्स को रोल मॉडल बनना है. अगर वैल्यूज बच्चों को सिखाना है तो घर में आप अगर ठीक रहेंगे तो बच्चे ठीक रहेंगे. घर में आप अगर गुस्सा करेंगे तो बच्चे आपको देखते हैं. तो टीचर आप पहले होते हैं घर में, टीचर माँ और बाप टीचर होते हैं और फिर स्कूल की टीचर. तो उन लोगों को रोल मॉडल बनना. तो आप लोग जो यहाँ बिराजे हैं सबको आपको पेरेंट की हैसियत से आपको रोल मॉडल बनना है. वो सबसे पहली सीख अपने घर से होती है. A report commissioned by UNESCO for education in the 21st century, it talked of a process that begins with self-understanding. यूनेस्को ने ये बात फिलॉसफी रखी, उसका सोल्यूशन निकाला है भी ये प्रोसेस और थिंकिंग से, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ से होना है. ये तो बहुत बड़ी बात यूनेस्को ने इसको सोच समझ से इसका निकाला है, इस निष्कर्ष भी अपने आप से समझ के अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ना है लाइफ के. Through an inner voyage. इनर वॉयज, अंदर से. जैन धर्म हम Whose कहते हैं मुड़ान, अंदर से ले आगे मत बढ़ो, अंदर पीछे से, अंदर से आप आगे प्रज्वलित हुए तेजुल से, या उसको बोलते हैं ऑरा of reflection, of knowledge, of self-criticism. इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं. अपने आप को सेल्फ सोचना है कि आज पूरा दिन हमारा कैसे गया, हम कितनी बार गुस्सा किए, कितनी बार गलत किए. तो उसी को गिल्ट को क्लैरिटी करके हमको क्लैरिटी से उठना है. तो अपना जो 60 किलो वजन है उतना ही लेके चलना है. 60,000 टन का वजन सर पे लेके नहीं चलना जो दुनिया लेके चलती है. तो इनका कहने का मतलब है, तात्पर्य है भी अपने सेल्फ एनालिसिस से आपको उभरना है अपने आप को. So if I want to be a values educator, the first question to ask myself is what values do I live by? मेरे को अगर वैल्यू सिखाना है तो पहले मैं खुद को अपने आप को पूछूं कि मैं वैल्यू सिखाने का लायक हूं और मैं उसको फॉलो करता हूं क्या. तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है. मैं दूसरों को सीख देने से पहले मैं खुद फॉलो करूं, फिर दूसरों को बोलूं मैं. Secondly, am I willing to be a role model for those values? और मैं उसके खरा उतरने के लिए तैयार हूं कि मैं खुद रोल मॉडल बनने के लिए काबिल हूं. तो पहले मैं अपने आप को यह प्रश्न पूछूं, बाद में मैं दूसरों को वापस बताऊं कि मैं वैल्यू एजुकेशन के लिए मैं खड़ा हूं, तो आप भी फॉलो करो. ये महात्मा गांधी जी की भी सेम फिलॉसफी थी. I have to teach values through my actions, not through my words. नॉट बाय, खाली बातों से नहीं होता, अपने विचारों से और अपने काम से, कर्म से. Or I should say, not just by my words. Not just by words, yes. And I should be aware of the impact that my own attitude and mood has on other people. मेरा स्वभाव और मेरे आचरण और मेरे जो शब्द और किसी को दुख नहीं पहुंचे, ये सब मैं अगर काबिल हूं तो मैं आगे इसको समाज को मैं बता सकता हूं कि भाई ये वैल्यूज, पीस, मॉरल और अपना स्वच्छ दिमाग से जीना है और जीने की कला सीखना है. तो मेरे को ये सब मैं अगर करना है तो मेरे को ये फॉलो करना पड़ेगा. Values educators need good interpersonal skills, but also intrapersonal skills. ये क्या बोलते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स, एक इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप के ऊपर इंटरपर्सनल, हम साथ में बैठ के एक ग्रुप एक्टिविटीज में हम सत्संग कर सकते हैं क्या. इनका कहने का मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स सत्संग से होता है. And so if we think, what is the components, what are the components, what is the definition of good education? गुड एजुकेशन के क्या पॉइंट्स होने चाहिए? We can think of many things, but बहुत सी चीजें सोच सकते हैं. for sure, I think we will not have good education unless we have good teachers. टीचर्स की बहुत जरूरत है और अच्छे टीचर्स होंगे तो एजुकेशन अच्छी होगी. And so a crucial part of this is to have good training for teachers. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द टीचर्स को अपग्रेड नॉलेज करने के लिए सब्जेक्ट के साथ में, वैल्यूज के साथ में और इंसानियत के हिसाब से वो सारे ट्रेनिंग, मतलब गवर्नमेंट मशीनरी नहीं तो एनजीओ कर सकती है. तो ये हम लोग को ये ऐसा करना है कि समाज में एक ऐसे ट्रेनर्स को तैयार करें ताकि वो बच्चों को इन्फ्लुएंस करे. And we need to provide ongoing care and support for each other. एक दूसरों से सपोर्ट से काम करना है. The problems we've heard about, the suicide, the drugs and so on, these are tough problems. ये सुइसाइड, रेप्स और ये ड्रग्स, ये सबसे बड़ी एजेंडा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, प्रश्न है पूरे विश्व में. इसको हम लोगों को सोचना है कि उसको कैसे इसको विवरण निकाले. इसका Values education is not a soft answer to a hard problem. वैल्यूज एजुकेशन
ही आंसर तो है ही है, बट वही पूरा आंसर नहीं है उसमें, उसके साथ में और भी काफी इंटीग्रेशन वर्जन करना पड़ेगा करके बता रहे हैं. It's a challenge for teachers to take it हमारे up. लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है. But it's a very rewarding challenge. A very rewarding challenge. बट ये चैलेंज को अगर हम सक्सीड करें तो एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन आ सकता है अपने एक जीवन के इस एक जन्म में. अगर हम एक कुछ भी कर पाए तो बहुत बड़ा एक सेटिस्फैक्शन मिल सकता है. And so it's one which I think we all need to embrace. तो हम सब लोगों को ये इसको अपनाना है और अपना फर्ज है, अपना धर्म है, अपनी ड्यूटी है, और इस विश्व को और समाज को बचाने के लिए हम लोग कर सकते हैं, इनका कहने का मतलब. और आप में ये क्षमता है. And just to close in 4 words, मैं 4 शब्दों में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ. बोलते as a theme or approach for values education, to explore values, to experience values, to express them, and to enjoy. एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस एंड एंजॉय. ये 4 वर्ड्स, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस एंड एंजॉय. एक्सप्लोर अपने मंथन, एक्सपीरियंस जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो दिन, एक्सप्रेस आप अपने वैल्यूज को एक्सप्रेस कीजिए और उसको स्वच्छ से एंजॉय कीजिए. लाइफ को बर्डन मत लीजिए. 4 वर्ड्स में मैं पूरे ये वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा, ये 4 वर्ड से. एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस एंड एंजॉय. ऑल 4 E's. प्लीज टेक होम दिस 4 words. Thank you, And sir. it seems to me that many of those aspects are in what I have heard of your work. ये सारे गुण बीजीएस में है और शांतिलाल जी मुत्ता में है. तो एक एंजल बन के आए हैं, तो ये सारी चीज गुण मैं इस इंसान में देखता हूं करके इनका कहना है. ये तो एक बहुत ही बड़ा, जो फॉरेनर आके अपने देश में अपने भाई को एक्सेप्ट करना, वर्ल्ड को, जैन कम्युनिटी में, इंडिया में, तो आई थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ अ बून टू अस. Maybe he has come as an angel for us. तो ये हमारे लिए एक स्वामी विवेकानंद हुए. And thank you for being an example of the proof that an individual can make all the difference. एक इंसान पूरे विश्व को फर्क दे सकता है, और इन्होंने, शांतिलाल जी मुत्ता ने, एक इंसान ने कर दिखाया है करके उनका कहना है. मतलब एक आदमी चाहिए विश्व को बदलने के लिए, सिर्फ एक इंसान चाहिए. कोई तादाद में हजारों लोग और करोड़ों लोग नहीं चाहिए. एक इंसान की सोच, एक महात्मा गांधी, एक मुत्ता, एक स्वामी विवेकानंद, एक सोच से मतलब पूरी दुनिया बदल सकती है. इनका एक कहना है. And if you can do it, so can we. So can all of us. तो आप भी ऐसे बन सकते हो. वो एक इंसान आप भी बन सकते हो और पूरे विश्व को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. Dhanyavad. धन्यवाद. थैंक यू. मैं इंग्लिश में बोलूंगा थैंक यू, इन्होंने हिंदी में धन्यवाद बोला. Is it वेरी ग्रेट ड्रेक. फिर मिलेंगी? फिर मिलेंगे. विल मीट अगेन. वो फिर मिलेंगे बोले ना, क्या तो विल मीट अगेन. फिर मिलेंगे. वी शैल मीट अगेन. थैंक यू. Mr. Drake, Christopher, it was a wonderful talk. It came from your heart, from the bottom of your heart. And I'm sure you have shaken the whole community here, and you have been inspiration for us and for Muthaji and BGS. Thanks a lot.